Saraswati and have her blessings before starting any event. I request the technical team to kindly play the AV. Please sing. असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मामृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. Thank you, sir. Now I request Honorable Chancellor and Honorable Vice Chancellor Shri Vaishnav Vidyapith Vishavidyalaya to felicitate the virtual welcome of Honorable Chief Guest Padma Shri Dr. Dinesh Singh. असतो Now I request Dr. K.N. Guru Prasad, Director, Shri Vaishnav Institute of Science, to throw some light on the 5th Srinivas Ramanujan Memorial Oration. Please, sir. Thank you, Dr. Nikita. Our distinguished guest, Padma Shri Dr. Dinesh Singh, Honorable Chancellor, Shri Purushottam Das Ji Pasari, Honorable Vice Chancellor, Dr. Upinder Dhar, Dr. Satish Shukla, Head Department of Mathematics, colleagues from Shri Vaishnav Vidyapith Vishavidyalaya, heads of the department, heads of the institutes, students, and guests. I take this opportunity to welcome you all for the 5th Srinivas Ramanujan Memorial Oration. We have been conducting this oration for the last 5 years, and today we have our distinguished guest to give this oration on the Mathematics Day in India, which is celebrated as Ramanujan, in memory of Ramanujan. Now, there have been many mathematicians in India who have been listed as the most revered mathematicians of the country. In that list, it starts from Aryabhatta, and we have Bhaskaracharya in that list. We have Brahmagupta, Varahimira, and several more. And Ramanujan is also listed in this, along with these distinguished ancient mathematicians of India. Ramanujan's life is well known to everyone. It's a short life with extraordinary achievements in the area of mathematics, which was internationally recognized. For people like us who are not in the field of mathematics, it is very difficult to understand the achievements made in mathematics by the great mathematicians. But if we look to the life of Ramanujan, then even for other mathematicians to understand the work of one mathematician becomes difficult. This was the case with Ramanujan also, because his earlier work, which he
which he sent to the international mathematicians like Professor Hill, Professor Baker, and Professor Hobson, was not recognized because all of them felt that Ramanujan's theories and Ramanujan's theorems are too novel, too unfamiliar, and it was also presented in unusual ways. Now, because of these things, the initial approach of Ramanujan to the international arena did not meet with success. But one of the professors from Cambridge University, Professor Hardy, recognized the genius of this mathematician. He understood the importance of these theories, studied them in detail, and invited him to Cambridge. And that is where Ramanujan became internationally known and also became fellow of the Royal Society with that recognition. Now, biographers of Ramanujan have often highlighted his religious beliefs also along with his mathematical achievements, because he has been quoted to have said that an equation for me has no meaning unless it expresses a thought of God. That is the quote which has been recorded by many biographers. Now, when we talk about the Indian mathematicians, there is a tendency in every branch of science to recognize someone as father of that area. Like, for example, father of biology. There is a world recognition and also a recognition within India. Father of biology, Aristotle. Similarly, father of chemistry, Anthony Lavoisier. And for India, it is P.C. Ray. Father of physics, interestingly, many of the books consider not one father of physics, but three fathers of physics: Newton, Galileo, and Einstein. And in mathematics, in India, whom do we recognize as father of mathematics? Most of the literature recognizes Aryabhatta as father of Indian mathematics, who happened to be the first mathematician in chronology. But it's also interesting that in many branches of science, only father of that branch is recognized. There is nothing like king of that branch. But in literature, Ramanujan has been recognized as king of mathematics in India. Now, that is the importance of his researches, which were appreciated worldwide and brought him the recognition. And that's the main reason that we celebrate the Mathematics Day in his name and not in the name of Aryabhatta. So Aryabhatta was, of course, known more for his astronomical work, although he was basically a mathematician. With this brief introduction, we look forward today to listening to one of the great mathematicians of this country, Dr. Dinesh Singh. I welcome you all once again for 5th Ramanujan Memorial Oration. Thank you. Thank you very much, sir, for this valuable information regarding Ramanujan Day. Now, I request Honorable Vice Chancellor, Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishavidyalaya, Dr. Upender Dhar, to deliver welcome address. Please, sir. Respected Professor Dinesh Singh ji, Honorable Chancellor of the University, Shri Purushottam Das ji Pasari, colleagues, Dean of Science, Professor K.N. Guru Prasad, other colleagues who are here in the webinar right now, guests, and young friends. At the outset, I would like to join Professor K.N. Guru Prasad in welcoming Professor Dinesh Singh on this very special occasion.
Sir, when we started this university way back in January 2015, one of the questions that was on our mind, that how are we going to be different? We didn't want to have a university which is just like any other university few streets ahead. We want to look different and do things differently. So we thought that one of the ways is to familiarize the youngsters with the contributions of sons. We started in 2016 by establishing the Aryabhat Memorial Oration. And this Aryabhat Memorial Oration, it was addressed by many well-known luminaries in the country, like Dr. Anil Kakodkar. All these are Padma Awardees, Padma Vibhushan, Dr. Anil Kakodkar, Dr. K. Radhakrishnan, former chairman of ISRO, Dr. Vasudev K. Atre, former Director General of DRDO, Professor P. Balaram of Indian Institute of Science, Bangalore, Padma Bhushan Vijay P. Bhatkar, and Dr. T. Ramaswamy. After Aryabhat Memorial Oration, we established Dr. C.V. Raman Memorial Oration, which is held every year on Science Day, that is 28th of February. And it has been addressed so far by Dr. G.D. Yadav of ICT Bombay, Professor M.S. Raghunathan, Professor Rohini Godbole, and Professor Thalapil Pradeep. Same way, we established the Vikram Sarabhai Memorial Oration, which has been addressed so far by Dr. P.I. John, Dr. Vikram C. Thakur, Dr. Dipankar Chatterjee, Shri Chandrakant Pithava, Dr. Sudhir Kumar Jain, Dr. Naveen Khanna, and Professor Aditya Prasad Das. All of them are the Padma Awardees in the country. The highest awards have been conferred on them. We started organizing Ramanujan Memorial Oration to commemorate his contributions a few years back, and every year we are organizing it on 22nd of December. First oration was delivered by Dr. Amlendu Krishna of TIFR Mumbai, Dr. Mahan Mahajan, again of TIFR, and Dr. Manindra Agarwal, and Dr. Naveen Garg. We are very happy that today, known scholar and great son of the country, of this great country, Professor Dinesh Singh ji is with us as distinguished speaker, and he will be delivering the 5th Ramanujan Memorial Oration. We are very much confident that we will be richer in our understanding with his deliberation, and we will be able to understand the nitty-gritties of mathematics. Many of us consider mathematics as a very difficult discipline, but then scholars, great scholars like Professor Dinesh Singh ji make it very simple, and it is very easy to understand. I had the opportunity to listen to him on several occasions. So long back, during the FICCI National Conference, Annual Conference, there was a panel discussion with the foreign vice chancellors of foreign universities, and you were then vice chancellor of Delhi University, which you had. The panel was chaired by you, and I had the opportunity to listen to your thoughts. And later on,
during my tenure as member of the governing council of AIU, I had the opportunity to listen to you several times. So once again, I'm very happy to welcome to this 5th Ramanujan Memorial Oration. Thank you very much. Thank you, sir, for your enriching address. Now, I invite Honorable Chancellor Shri Vaishnav Vidyapith Vishavyalaya, Shri Purushottam Das Ji Pasari, to share his words. Please, sir. नमस्कार। 5वें श्रीनिवास रामानुजन स्मृति व्याख्यान के माननीय मुख्य वक्ता आदरणीय पद्मश्री प्रोफेसर दिनेश सिंह जी, वाइस चेयरमैन जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद, भूतपूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय, माननीय कुलपति श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय डॉक्टर उपेंद्र धर, सभी निर्देशक गण, वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस श्री के.एन. गुरु प्रसाद जी, विभागों के प्रमुख एवं सभी विशिष्ट प्रतिभागी जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है, उन सभी को नमस्कार, अभिनंदन। आज के इस व्याख्यानमाला में हमारे बीच माननीय मुख्य वक्ता के रूप में पद्मश्री प्रोफेसर दिनेश सिंह जी आए हैं। उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं एवं उनका अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में पधार के हमें गौरवान्वित किया है। बंधुओं, श्री वैष्णव ट्रस्ट एवं इसकी सहयोगी संस्थाओं ने गत 138 वर्षों से इंदौर शहर में नर सेवा नारायण सेवा मंत्र को आधार मानकर जन सेवा एवं जन कल्याण के अनेक प्रकल्प संचालित किए हैं। वर्ष 1884 में इंदौर के वस्त्र व्यवसायियों ने स्वयं के व्यवसाय पर शैक्षिक टैक्स लगाकर श्री वैष्णव सहायक कपड़ा मार्केट कमेटी की स्थापना की थी। इसका मूल उद्देश्य असहाय बंधुओं तथा जरूरतमंद नागरिकों की सहायता करना, पशु पक्षियों को आहार देना और साधु संतों की सेवा करना था। सभी पूर्ववर्ती संस्थापकों की दूरदर्शितापूर्ण नीतियों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप संस्था द्वारा 1925 में श्री वैष्णव अन्न क्षेत्र एवं श्री रामकृष्ण बाग और 1934 में श्री वैष्णव आयुर्वेद औषधालय की स्थापना की गई थी। यह औषधालय विगत 88 वर्षों से आज भी संचालित है एवं अब इसमें आयुर्वेदिक, एलोपैथिक तथा होम्योपैथिक पद्धति से मरीजों का इलाज किया जाता है। सन 1951 में तिकलाद मार्केट वैष्णव हायर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की गई। यह विद्यालय स्थापित होना वैष्णव ट्रस्ट के इतिहास में टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ। इसके पश्चात 1962 में श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक, 1967 में श्री वैष्णव वाणिज्य महाविद्यालय, 1981 में श्री वैष्णव बाल मंदिर, 1992 में श्री वैष्णव कन्या विद्यालय, 1993 में श्री वैष्णव एकेडमी, 1995 में श्री वैष्णव प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान तथा 2005 में श्री वैष्णव विधि संस्थान तथा श्री वैष्णव शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित किया गया। आज इन सभी संस्थाओं में 25,000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। उल्लेखनीय है कि न लाभ न हानि के आधार पर संचालित ये सभी संस्थाएं अपनी प्रतिष्ठा से संपूर्ण देश और प्रदेश को गौरवान्वित कर रही है। सन 2015 में श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। विश्वविद्यालय का उद्देश्य ऐसा उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना है जिससे कि बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक प्रेरणा मिल सके एवं मूल्य आधारित नेतृत्व की क्षमता को पोषित किया जा सके। स्थापना के अल्प समय में ही यह विश्वविद्यालय प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर उन्नतिशील संस्थान के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करने में सफल रहा है। विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट तथा उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, अनुभवी प्राध्यापक, सर्व सुविधा युक्त प्रयोगशालाएं एवं अध्ययन तथा अध्यापन हेतु अनुकूल वातावरण छात्र छात्राओं को उपलब्ध है। छात्रों के समग्र विकास हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर अनेकानेक कार्यशालाएं, सेमिनार तथा अन्य कई प्रकार की एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों का संचालन पूरे वर्ष किया जाता है। महान भारतीय वैज्ञानिकों जैसे आर्यभट्ट, श्रीनिवास रामानुजन, सर सीवी रमन, विक्रम साराभाई, मोक्ष कुंड विश्वेश्वरैया एवं सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में स्मारक भाषणों की श्रृंखला
आयोजित करने में विश्वविद्यालय के प्रयासों की मैं अत्यंत ही सराहना करता हूँ। ये व्याख्यान युवाओं को समाज के विकास में भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान का स्मरण कराते हैं और साथ ही ये प्रख्यात वैज्ञानिकों और विद्वानों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। मैं इस ऑनलाइन मंच पर श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय में हमारे आज के वक्ता पद्मश्री प्रोफेसर दिनेश सिंह जी का जो गणित के क्षेत्र में किए गए अनुसंधानों के लिए विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा आपकी उपस्थिति के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। मैं कामना करता हूं कि निकट भविष्य में आप हमारे विश्वविद्यालय का दौरा करें और हमारे छात्रों को प्रेरित करें। आपकी विशेषज्ञ सलाह निश्चित रूप से हमारे विश्वविद्यालय को बेहतर बनाने में और मदद करेगी। यह मेरी प्रबल भावना है कि व्याख्यान निश्चित रूप से युवा मन को प्रज्वलित करने के उद्देश्यों को पूर्ति करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय वैष्णव। Thank you, sir. We are honored with the gracious presence of our chief guest, Padma Shri Dr. Dinesh Singh, well-known mathematician and Vice Chairman, Jammu and Kashmir Higher Education Council. To read the citation, I invite co-coordinator of today's program, Dr. Praveen Kumar Sharma. Please, sir. Thank you, madam. It is a matter of pride privilege for me to read the citation for Padma Shri Professor Dr. Dinesh Singh. I quote, Dr. Dinesh Singh is one of the most acclaimed and internationally acknowledged mathematicians in India. Dr. Singh did his PhD from the Imperial College of Science, Technology and Medicine, London, England. He is currently serving as Chancellor at K.R. Mangalam University and as Vice Chairman, Jammu and Kashmir Higher Education Council. As an academician, he is presently serving as an AICTE Distinguished Chair Professor and as a Distinguished Professor at SGT Gurugram. He has served as Vice Chancellor of Delhi University and as Director South Campus, Delhi University, Delhi. He also served as an adjunct professor at the University of Houston, Texas, USA, and as a distinguished senior fellow, Advanced Hackspace at Imperial College London. He has received the fourth highest civilian award of the Government of India, Padma Shri, conferred by the President of India. He has received honorary doctorates from the University of Edinburgh, the National University of Ireland, the University of Houston, and the National Institute of Technology, Kurukshetra. He also received the AMU Prize of the Indian Mathematical Society, the Career Award of the University Grants Commission, Ramaswamy Iyer Award Lecture from the Indian Mathematical Society. He has served on the jury of the Gyanpith Award. He was a member of the Scientific Advisory Committee, Union Cabinet Government of India from 2011 to 2018 and President of the Ramanujan Mathematical Society from 2016 to 2019. He was on the Steering Committee, Science and Technology and Education, 12th Five-Year Plan for India, Planning Commission, Government of India. Dr. Singh's research area is in the realm of harmonic analysis and operator theory. He has published several research papers in international journals in the field of mathematics and has authored and edited several books, monographs, and papers. His research has been cited in numerous books and journals and has been taught in courses. He has pioneered several new ideas in the realm of education and on the role of technology in education. He is a painter, acclaimed public speaker, and a student of Gandhian philosophy, and is avidly fond of literature in English, Hindi, and Urdu. He has delivered numerous prestigious invited public and keynote lectures on education, policy toward economic growth, mathematics, and Gandhi. He has keen interest in sports and has been a college scholar holder in volleyball. He is currently setting up a pioneering idea in education in the form of the Internet College and the College of Startups, and is also working on a book dealing with India in the 21st century. Sri Vaishnav Vidyapith Vishwavidyalaya Indore is privileged to present this citation to Padma Shri Professor Dr. Dinesh Singh for delivering the 5th Srinivas Ramanujan Memorial Oration
as distinguished speaker today, that is on 22nd December 2022. Unquote. Namaskar, sir. Thank you, sir. Now, I request Honorable Chancellor and Honorable Vice Chancellor Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishavidyalaya to present virtual citation to our chief guest, Dr. Dinesh Singh. Thank you. Now, please give me honor to call Dr. Dinesh Singh to address the gathering. Please, sir. नमस्कार। आदरणीय चांसलर पसारी जी, वाइस चांसलर प्रोफेसर धर, प्रोफेसर गुरु प्रसाद, अन्य सहयोगी गण, अतिथिगण, वरिष्ठ विशिष्ट अतिथिगण, मैं आभारी हूं कि मुझे अवसर मिला है आज संबोधित करने का नेशनल मैथमेटिक्स डे के अवसर पर। मैं आपके विश्वविद्यालय की ओर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और मुझे जानकर हर्ष भी होता है कि विश्वविद्यालय की गतिविधियों में गणित को काफी प्राथमिकता दी गई है और भी अन्य जो गतिविधियां हैं विश्वविद्यालय की, उससे मुझे कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हुई है और मैं अवश्य आऊंगा आने वाले दिनों में। व्यस्तता ऐसी थी कि मैं कल रात को ही लौटा हूं जम्मू से और मुझे 4 बजे फिर कहीं उपस्थित होना है, वरना मैं आज इंदौर जरूर आता। इंदौर और जुड़ा हुआ जो उसका इलाका है, वहां उज्जैन विशेष रूप से यह गढ़ रहा है गणित को लेकर, ज्ञान विज्ञान को लेकर। अगर भारत की ख्याति विश्व में बनी रही है सदियों से, तो उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इंदौर, उज्जैन, इस इलाके की। यहाँ के जितने जाने माने गणितज्ञ रहे, बुद्धिजीवी रहे, उनका बहुत भारी योगदान रहा है। रामानुजन को हम क्यों याद करते हैं, उसका भी मैं कुछ उल्लेख करूंगा आज अपने वक्तव्य में। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे मैं कोई श्रेय नहीं अपने ऊपर ले रहा हूं, परंतु मुझे संतोष हुआ और हर्ष हुआ कि 2013 में प्रधानमंत्री से मैंने और एक आध और गणितज्ञ थे जाकर व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया कि रामानुजन के जन्म दिवस को घोषित किया जाए एज नेशनल मैथमेटिक्स डे, और भारत सरकार ने इसको स्वीकार लिया। और उससे मैं आशा रखता हूं कि गणित की ओर, रामानुजन की ओर, राष्ट्र निर्माण की ओर गणित की भूमिका को लेकर शायद और भी सजग लोग हो गए होंगे। I am delighted that I will be addressing a large audience today on the triumph and tragedy of Srinivas Ramanujan. उनके जीवन के साथ ये दोनों पहलू जुड़े हैं जीवन के अनुभवों के। एक तरफ उनके कई विजय रही, तो दूसरी तरफ एक उनके साथ जीवन को लेकर दुर्घटना जो रही, जिसमें कि उनकी आयु बहुत कम रही जब उनका निधन हो गया। That is a tragedy. There are some other tragedies associated with Ramanujan, and I would like to take this occasion to make the audience aware that it now falls on our shoulders to carry forward the legacy of Srinivas Ramanujan. Ramanujan, as we all know, was born in 1887 in a small town, a kind of hamlet, एक छोटा कस्बा था, कुंभकोणम। उनका जन्म वहां नहीं हुआ, जन्म अपने
माँ के घर ननिहाल में हुआ था, पर वे वहीं पर कुंभकोणम में उनके माता पिता रहते थे और उनका पालन पोषण वही हुआ। बहुत ही गरीब परिवार से थे रामानुजन, बहुत ही गरीब परिवार से। पिताजी एक साधारण नौकरी मुनीम की तरह लेकिन एक छोटे से दुकान में करते थे। माँ मंदिर में अवसर आता था, कभी कोई धार्मिक, तो वहां भजन वगैरह गाती थी। रामानुजन 4 वर्ष की आयु पार कर चुके थे और वह बोल नहीं पाते थे, लिखना तो दूर रहा। There is a lesson here. Ramanujan could not speak, read or write till he had crossed 4 years of age, almost 5. Einstein also could not do that. It took him a long time before he could start speaking, reading and then writing. You know, I have no idea what it is like in Indore, but until a few years ago, in the city of Delhi, if you had to admit a small child to a school, then at the age of 2 or 3, the child would be subjected to an interview. And if the child would not perform well in the interview, then he or she would be rejected. I want the audience to think about this. Remember what I said. Ramanujan and Einstein could not speak or read or later write till they had crossed 4 years of age, almost 5. This practice of interviewing small children for admissions into schools is a strange practice. By that practice, just look what we are doing. We are eliminating all potential Ramanujans and Einsteins. हम उनको तो वंचित कर दे रहे हैं। और प्रक्रिया ऐसी क्यों बनाई है कि हम देखना चाहते हैं बच्चे में क्या प्रतिभा है और कर रहे हैं उसका उल्टा। हमें क्या मालूम कितने ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे वंचित कर दिए गए होंगे शिक्षा से। मैं चाहता हूं कि आज इस अवसर पे हम उस पर भी गौर करें। रामानुजन इस आयु में नहीं बोलते थे, लिखना भी नहीं आता था, तो उनकी मां ने तय किया कि उनको फिर वो ननिहाल रामानुजन के ले जाएंगी। He was taken again to his maternal home, and because they were poor, Ramanujan's maternal grandfather, उनके जो नाना थे, उन्होंने एक सरल युक्ति अपनाई। कागज पत्र कलम तो नहीं था, जमीन पर चावल के दाने बिखेर कर एक तरह से उन्होंने व्हाइट बोर्ड बना लिया और रामानुजन को एक लकड़ी दी, अपने हाथ में भी लकड़ी रखी और तमिल भाषा के अक्षरों का, वर्णमाला के अक्षरों का रामानुजन से परिचय कराने लगे। रामानुजन के दिमाग में कुछ चाबी चल पड़ी। Something happened, something clicked. And almost in the same breath, Ramanujan began to speak, read, and write. And when this was achieved, his mother brought him back to Kumbhakonam. तो वे कुंभकोणम वापस आ गए और कुंभकोणम में आकर उनको स्कूल में दाखिला उनको मिल गया और वहां उनके शिक्षा की गतिविधियां आरंभ हो गईं। He began to be educated in the school. But I want you to recognize that he was so poor that on many days he would not be able to eat properly at home. And his neighbors would take pity on him and feed him food. That was the state of Ramanujan's home, economically, financially. During the course of studying in his school, at some stage, he began to express interest in mathematics, in arithmetic. This is when he was around 9-10 years of age. उनको गणित में उनकी रुचि जाग गई, जिज्ञासा बढ़ी, गणित से उनका लगाव बढ़ा और वे गणित की ओर खींचते गए।
As luck would have it, right during that time, he came across a book. आज की भाषा में, आज के parlance में, in today's parlance, we would call that book a tuition center book. वो mug book थी, रटने की किताब थी. It was written by someone in England called Carr, C-A-R-R, Carr. The title of the book was Carr's Synopsis of Mathematics. उस किताब में तमाम फॉर्मूले दी गई थी रटने के लिए, गणित की फॉर्मूले तमाम दी हुई थी. उनको रटना था और रट के इम्तिहान में उत्तीर्ण होने के लिए वो काम आती थी. रामानुजन का दिमाग उसी से चल पड़ा. When he saw those formulae, it was a thick book. And there were no proofs, no ideas, no explanations, just a collection of formulae. That was enough to excite Ramanujan's mind. And each formula in the book for Ramanujan was a piece of research, because Ramanujan began to prove those formulae by himself, one by one. So Ramanujan had already at that stage begun to do original mathematics. And his teachers recognized that this was an extraordinary talent. At that stage, to take a book which has no proofs, no ideas, no explanations, and in that book, there is a huge list, page after page, of new mathematical formulae. And then for this young boy of 10, 11, 12 years of age to be able to pick those formulae and to be able to explain them, to write their proofs, to deduce those formulae, was a remarkable piece of achievement. Obviously, his teacher in school recognized that the boy is really talented in mathematics. Ramanujan became excited and completely devoted to mathematics. He was completely attached to mathematics by now. And he went beyond what the school was teaching him. So his teachers in school, even though they understood that the boy is really gifted in mathematics, were not sure what he was really doing. They could not understand what he was doing beyond what was the purview of the school syllabus. Certainly, they recognized him as a sort of genius. At this time, Ramanujan's father was worried that the boy takes too much interest in mathematics and does not pay enough attention to other studies. And he began to frown upon Ramanujan's attachment for mathematics. रामानुजन को लेकर उनको चिंता थी कि ये सिर्फ गणित की ओर झुके हुए हैं, इससे आगे चलकर इनको नौकरी मिलेगी कि नहीं, कुछ अपने लिए जीवन में कर पाएंगे कि नहीं, उसकी उनको चिंता होती थी. तो वे थोड़ी नाराजगी भी जाहिर करते थे. परंतु रामानुजन के अंदर तो उनकी अंतर्ध्वनि जाग उठी थी. हर व्यक्ति विशेष के अंदर एक ध्वनि होती है, उसके आत्मा की ध्वनि, अंतरात्मा की ध्वनि. मैं उसको अंतर्ध्वनि कहता हूं. वह ईश्वर की पुकार है. उसको मैं कहता हूं हर उस व्यक्ति का स्वधर्म है. और जब व्यक्ति उसको पकड़ लेता है, उस आवाज को समझ लेता है और संसार में, जीवन में, इस धरती पे उसके अनुकूल कदम रखने लगता है, उस ध्वनि के अनुकूल, तो वो आगे बढ़ने लगता है. उसका विकास होता है हर प्रकार से, आध्यात्मिक रूप से, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में. जैसे गांधी जी ने सत्य की आवाज पकड़ ली थी छोटी उम्र में, मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति पकड़ ली थी, रामानुजन ने गणित को पकड़ लिया. वह उनका धर्म बन गया और फिर उसमें वे लीन होते गए. दिक्कत क्या थी कि जैसा मैंने बताया, पिताजी नाराज होते थे कि भाई और चीजें भी हैं, आगे कैसे काम चलेगा. लेकिन रामानुजन ने त्यागा नहीं. पिता से छुपकर, छोटा सा घर है, स्मॉल हाउस, आपको ऑनलाइन, आपको इंटरनेट में उसकी तस्वीरें भी मिल जाएंगी.
अब उसको एक म्यूजियम का दर्जा दे दिया गया है, वहां लोग जाते हैं, एक प्रकार से हम लोगों के लिए तो तीर्थ स्थान है। लेकिन जब आप उस घर को देखेंगे तब आपको अनुमान लगेगा कि रामानुजन किस अवस्था में थे आर्थिक रूप से। उस छोटे से घर में भी एक सीढ़ी थी नीचे के तल्ले से ऊपर जाने के लिए। उस सीढ़ी के नीचे छुप कर रामानुजन गणित करते थे। इतना लीन थे, इतना लगाव था, पिताजी से छुपकर वहां पर गणित का अध्ययन करते थे। इसको कहते हैं अपने को समर्पित कर देना पूर्ण रूप से। मीराबाई ने इसको बड़े खूबसूरती से कहा, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर दूजा न कोई, टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग एल्स आई मीराबाई विल डिवोट माई सेल्फ टू द वर्शिप ऑफ श्री कृष्ण। कबीर ने मैं इसको अपने शब्दों में बड़े खूबसूरती से कहा, साहिब मेरा एक है दूजा कहा न जाए, दूजा साहिब जो कहूं साहिब खड़ा रसाए। बहुत बड़ी चीज है। एक ही साहिब है, एक ही ईश्वर है जिसको भी आप माने और फिर उसकी भक्ति में सब कुछ त्याग कर उसमें लीन हो जाए तो वो आपको सिद्ध करा देगा, पार करा देगा। रामानुजन ने इसको हमें दर्शा दिया। स्कूल तो 10वीं का था, उसको तो रामानुजन उत्तीर्ण कर गए और ठीक ठाक कर लिया उन्होंने, तेज तो थे ही। ये न सोचिएगा कि और विषयों में रामानुजन कमजोर थे, समझ नहीं पाते थे, समय नहीं देते थे, परंतु उनको वजीफा, उनको स्कॉलरशिप मिली और वहां से वे इंटरमीडिएट में गए मद्रास यूनिवर्सिटी में। जब वो मद्रास गए, अब उनको गणित को लेकर उनके मस्तिष्क में एक प्रकार से आग लग गई थी, जिसको डॉक्टर कलाम साहब ने एक बार कहा था ना, फायर लग जाए। वो जो आग थी वो लग गई थी, वो गणित को लेकर लीन हो गए थे। इंटरमीडिएट के दौर में जहां उनको स्कॉलरशिप मिल रही थी जिसकी वजह से वे पढ़ पाते थे, उस स्कॉलरशिप के कुछ नियम थे कि हर विषय में उनको उत्तीर्ण होना पड़ेगा। जब परीक्षा का समय आया तो रामानुजन अंग्रेजी में नहीं पास हो सके। जब अंग्रेजी में विफल हो गए तो स्कॉलरशिप बंद हो गई और उनको छोड़ना पड़ा विश्वविद्यालय को। उस समय उनके जो अध्यापक थे वो समझ रहे थे कि ये अद्भुत प्रतिभा का व्यक्ति है, अद्भुत प्रतिभा, लेकिन कुछ नियम ऐसे थे। यहीं पर संस्थाओं का, समाज का एक परीक्षा का क्षण आता है कि जब आपको मालूम पड़ जाता है कि अद्भुत है व्यक्ति, तब आप नियम से पार हो जाइए। यू मस्ट ट्रांसेंड योर ट्रेडिशंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। रामानुजन के जीवन में और संस्थाओं ने और जगह किया, लेकिन भारत में हम चूक गए। He had to be expelled, in a sense, removed from the rolls of Madras University, because even though everyone knew that he was extraordinarily gifted in mathematics, because he could not succeed in English. And incidentally, Ramanujan's English is very, very capable English. It is perfect. He communicates well. I have read the letters that Ramanujan has written during his time, from the days in Madras to the time in England. All his letters are written in very good English. It is not that he had no command over English. He was good at it. But of course, he was not interested in English literature and would not like to waste his time reading English literature. He would rather do mathematics. And so Ramanujan had to pay a price, an unfortunate price. For some time, he tried to support himself. He began to give tuitions. देखिए, हमारे लिए रामानुजन ईश्वर है, हम गणितज्ञों के लिए तो वो देवता है। हमारे लिए गणित के ईश्वर रामानुजन है। उनके टक्कर का गणितज्ञ सदियों में नहीं हुआ है, पूरे विश्व में। और ऐसे ईश्वर के साथ इस प्रकार से व्यवहार हो, उसकी प्रतिभा को लेकर एक प्रकार से तिरस्कार किया जाए कि नहीं, आप अंग्रेजी भी कर लीजिए, ये तो कुछ अद्भुत है, विचित्र है। लेकिन ट्यूशन करना पड़ा उनको पेट भरने के लिए, नहीं कर पा रहे थे। उधर माता पिता तकलीफ में थे, रामानुजन कठिनाई में थे। हाँ, उनके मित्र कुछ थे जो उनका सहयोग देते थे, उनको एक प्रकार से सांत्वना भी देते थे।
Finally, there were people in Chennai who understood. He was taken to people who were amateur mathematicians, जिन्होंने इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना की थी. और उस संस्था के जो थे लोग, जो वरिष्ठ लोग थे, उन्होंने भी प्रयास किया. They tried to help Ramanujan, but things were becoming difficult. Around this time, Ramanujan's mother decided to marry him off. And so he was married to this young girl called Janki Amma. Janki Amma became his wife. Now Ramanujan, his mother thought that now he will work seriously and find a job because he will have a wife also. And certainly Ramanujan was now burdened with his wife also. Burdened in the sense that he had to support her. So Ramanujan began to look for a proper job. Fortunately, there were people who helped him a little bit financially here and there, but no job was coming. But fortunately, Ramanujan managed to get a job as a clerk in the Port Trust in Madras, now called Chennai. I have been to that place. It's an official body, and there are lots of offices, and there was an Englishman who was the head of the Port Trust. And he gave Ramanujan a job. But here is something good that happens to Ramanujan. His boss, this Englishman, he understood that this man is extraordinarily gifted in mathematics. And so he gave Ramanujan the freedom to pursue mathematics even when he was in the office. So Ramanujan would sit in the office, and he could not afford pen, paper, but this boss allowed him to use paper from the old files of the Madras Port Trust, on whose sheets of paper people had written on one side, but the other side was blank. कोरी थी दूसरी तरफ. तो कोरा हिस्सा जो कागज का था, उनके जो उस समय के जो बॉस थे, उनके जो अध्यक्ष थे, उन्होंने उनको अनुमति एक प्रकार से दे दी बिना लिखे. इन चीजों में औपचारिकता नहीं लाई जा सकती. He was allowed to do mathematics on the blank side of the sheets of paper in the files of the Madras Port Trust. And that allowed Ramanujan to grow even more as a mathematician. This is the time when those people who understood a little bit about his greatness as a mathematician in Madras urged Ramanujan to write to professional mathematicians to get them to see and understand what Ramanujan was doing. And so he first wrote to people in India. One of them was a Professor Saldana in Bombay University, who was a mathematician who had been trained in England. Ramanujan wrote to him, explained what mathematics he had done or was doing, but there was no satisfactory conclusion to his interaction with Professor Saldana. I want you to recognize that Ramanujan has been struggling all the while. Up to this point, even when he is a clerk, he is struggling. And on one side, it's just enough to help him feed his wife and himself, but nothing more. And at the same time, he is struggling to get people to understand his mathematics. But there was no one in India, it seems, who could truly recognize and accordingly grant Ramanujan that special place which is accorded to geniuses. But people there in Chennai urged Ramanujan to write now to mathematicians in England. We must understand that this was a time when the English were ruling us. अंग्रेजों का हमारे ऊपर राज्य था, भारत अधीन था, गुलामी के शिकंजों में जकड़ा हुआ था. हमारे लिए अंग्रेज ही सब कुछ थे. हम मानते थे कि शिक्षा और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी वे बड़े आगे हैं. कभी कभी मैं सोचता हूं, मेरे अंदर ये विचार आते हैं कि अगर रामानुजन ने फ्रांस में या जर्मनी में ये खत लिखे होते, ये पत्र लिखे होते, तो क्या परिणाम निकलता, उसका क्या कुछ और अंजाम होता. क्योंकि उस समय फ्रांस और जर्मनी इंग्लैंड से गणित के क्षेत्र में बहुत आगे था, बहुत ज्यादा आगे था.
खैर ये सोचने की बात है। रामानुजन कोई अंदाज नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, उनको तो कोई अंदाज नहीं था। उनको यह भी नहीं मालूम था कि बाहर गणितज्ञ हैं तो क्या करते हैं। लेकिन उन्होंने अंग्रेज गणितज्ञों को खत पत्र लिखना शुरू किया। तो जैसा कि अभी आरंभ में जब उल्लेख हो रहा था आज के दिन का, तो मेरा अनुमान है शायद गुरु प्रसाद जी या किसी ने चर्चा किया कि रामानुजन ने गणितज्ञों को लिखा इंग्लैंड में। ही रोट टू मैथमेटिशियंस इन इंग्लैंड but did not receive a satisfactory response. I remember, I cannot remember the name, but I remember one letter that Ramanujan received where this mathematician looks at his mathematics and makes no comment, but tells him, you know, you need to change your grammar a little bit, make some changes in your style of writing English. That's all. He had nothing to say about mathematics. But you know, Ramanujan did not give up. He is so confident, but he is not vain. अहंकार नहीं था उनके अंदर, आत्मविश्वास था, मनोबल बना हुआ था कि नहीं, मैं गणित में ठीक मार्ग पे हूं, कोई ना कोई शायद मिल जाएगा जो मुझे समझ लेगा और मुझे आगे बढ़ने के लिए मेरी सहायता करेगा। यह मान के वो चल रहे थे। अंत में ऐसा ही हुआ। एक दिन उन्होंने खत लिखा प्रोफेसर जीएच हार्डी को, जो कैम्ब्रिज में थे, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। हार्डी बहुत ही ऊंचे दर्जे के गणितज्ञ थे, विश्व स्तर के, उनके टक्कर के बहुत कम गणितज्ञ थे विश्व में। यह अच्छा संयोग था क्योंकि और जो लोगों को पहले लिखे थे वो हार्डी के टक्कर में कुछ नहीं थे। हार्डी बड़े ऊंचे गणितज्ञ थे। इसका देखिए क्या लाभ होता है, क्या परिणाम होता है। हार्डी के शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं कि एक दिन सवेरे उनके पास रामानुजन का पत्र लाया गया। वे निकलने वाले थे दिनचर्या के काम को लेकर, लेकिन पत्र उन्होंने खोला तो उस पत्र में लंबा पत्र था 3-4 पन्ने का, और रामानुजन ने लिखा था। और देखिए किस विनम्रता से, किस अहंकार विहीनता से रामानुजन लिख रहे हैं, जबकि वे जानते थे कि गणित में उन्होंने बड़े ऊंचे दर्जे की गणित कर ली है। तब भी he says, I beg to introduce myself to you. In my spare time, I'm a clerk in the Madras Port Trust. In my spare time, I do mathematics. And during the process of doing mathematics, I have made some discoveries. I would like to bring them to your attention for your comments. और फिर उन्होंने उस पत्र में 2-3 पन्ने का पत्र है, गणित की तमाम जो उनकी खोज थी वो सारी वहां पर सारी तो नहीं लेकिन काफी हद तक लिख डाली। यही औरों के साथ किया था तो किसी ने जवाब नहीं दिया। हार्डी के ऊपर इसका दूसरा प्रभाव पड़ा। लेकिन पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में जो उनके आसपास के लोग थे समकालीन, चेन्नई में, मद्रास में, वे जान चुके थे कि ये गणित में बड़े ऊंचे व्यक्ति हैं। रामानुजन को आत्मविश्वास था कि मैं जो कर रहा हूं बहुत ऊंचे दर्जे का है। पर देखिए किस विनम्रता से उन्होंने वह पत्र लिखा है। बहुत ऊंची चीज है ये, बहुत ऊंची चीज है। कबीर उसको बड़े खूबसूरती से कहते हैं, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है जब मैं नाही। जब तक आप अहंकार नहीं त्यागेंगे आपका ईश्वर आएगा नहीं आपके पास। उसके लिए स्थान के लिए जगह कहाँ है? आप अहंकार ने भर दिया है सब कुछ। तो ये रामानुजन अहंकार विहीन थे, इसीलिए गणित का ईश्वर उन पे बरस रहा था, बरसाया जा रहा था। हार्डी लिखते हैं कि वो पत्र जब उन्होंने पढ़ लिया तो निकले बाहर अपने क्लास लेने के लिए, लेक्चर काम वगैरह था। लेकिन वे लिखते हैं कि दिन भर उनके मस्तिष्क में वह पत्र मंडराता रहा। उसके शब्द जो है उनको टटोलते रहे, नोक लगाते रहे, चुभाते रहे कि कुछ बात है, कुछ बात है। और शाम को जब वे लौटते हैं तो दोबारा उस पत्र को पढ़ते हैं, इस बार और गंभीरता से, क्योंकि अब उनके सबकॉन्शियस में यह पत्र उतर चुका था, उसका गणित उतर चुका था। And then he reads that letter carefully from a mathematical viewpoint.
मुझे इस बात का गर्व है, हार्डी मेरे मैथमेटिकल ग्रैंडफादर है। मैंने जिन गुरु के साथ पढ़ाई की उनके गुरु थे हार्डी। मुझे इसका गर्व है कि मैं भी उस परंपरा का एक छोटा सा तुच्छ अंश हूं जिसने रामानुजन को उत्पन्न किया, हमारे देवता को उत्पन्न किया। हार्डी फिर रात के वक्त एकदम उनको विश्वास हो गया एकदम कि ये बड़ा भारी गणितज्ञ है। पहले तो उनको ये भी लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हमको झांसा दे रहे हैं, ये कौन व्यक्ति है हमको बेवकूफ बना रहा है, ऐसी फॉर्मूला वैसी लिख लिखा के। लेकिन अच्छे गणितज्ञ थे, अंत में समझे कि भाई ये गणित सही है, इस दर्जे की गणित कोई धोखे देने वाला आदमी कर ही नहीं सकता। तो मान गए कि ये जीनियस है। दूसरे दिन उन्होंने अपने निकटतम सहयोगी जो उन्हीं के दर्जे के गणितज्ञ थे लिटिलवुड को बुलाया, और लिटिलवुड और हार्डी ने फिर से वह पत्र पढ़ा। अब समझ लीजिए रामानुजन के गणित का क्या प्रभाव था कि ये दो सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ इंग्लैंड के और विश्व स्तर के, उनके टक्कर के विश्व में बहुत ही कम गणितज्ञ थे। फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका में थे उस समय कुछ लोग, ये दोनों अद्भुत थे। वो फिर से बैठ के गौर कर रहे हैं क्या ताकत, क्या प्रभाव, किस प्रबलता से रामानुजन ने उनके ऊपर प्रभाव डाला था। और फिर वे इस निर्णय पे पहुंचे कि यह अद्भुत गणितज्ञ है, ही इज अ जीनियस एंड वी नीड टू get in touch with him and we must get him to come to Cambridge. And this is how Ramanujan's story of coming to Hardy begins. Hardy बहुत ही प्रभावशाली गणितज्ञ थे, वे जानते भी थे, उनको व्यवहारिकता भी आती थी। तो अंग्रेज सरकार, कैम्ब्रिज के जो अथॉरिटीज थे, वाइस चांसलर वगैरह, उन सबसे उन्होंने प्रबंध करा लिया कि रामानुजन को हम यहां पर वेतन देकर बुला लेंगे। अब प्रश्न ये था कि रामानुजन आए तब ना, रामानुजन आना नहीं चाहते थे। उनकी मां मना कर रही थी कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें, और रामानुजन अपनी मां का आदर करते थे। लेकिन हार्डी ऐसे मानने नहीं वाले थे। नेविल करके एक मैथमेटिशियन थे, उस समय वो कैम्ब्रिज से भारत आए हुए थे। तो रामानुजन ने हार्डी ने नेविल को भेजा रामानुजन के पास कि इस शख्स को तुम मनाओ। नेविल पहुंचे वहां पर, रामानुजन से मिले, खूब समझाया बुझाया। रामानुजन ने फिर मां को कहा तो मां ने अनुमति दी कि अच्छा तुम जा सकते हो। तो हार्डी ने उनको बता दिया था कि हम सारा प्रबंध आपका करेंगे, आपके आने जाने का खर्चा, वहां रहने का इंतजाम, सब कुछ हो जाएगा, आपको चिंता नहीं रहेगी। अब रामानुजन जाने की तैयारी करने लगे। रामानुजन की पत्नी भी जाना चाहती थी। यह एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उनकी पत्नी साथ जाना चाहती थी, जानकी। लेकिन उनकी मां रामानुजन की उन्होंने अनुमति नहीं दी। एक ऐसा युग आया है अनादि काल में, उस युग में इस भारत को भारत बनाया गया उसी जानकी जो अपने पति के साथ जाने की अनुमति लेकर निकल गई, जिससे भारत भारत बना। लेकिन इस जानकी को जाने का अवसर नहीं मिला, और यह दुर्भाग्य हो गया, एक दुर्घटना घट गई, क्योंकि रामानुजन अकेले गए। जब कैम्ब्रिज पहुंचे तो वहां से वे पत्नी को हर सप्ताह पत्र लिखते थे, उत्तर एक भी नहीं मिल रहा था, और पत्नी की याद उनको बहुत आती थी। होता क्या था कि उनके पत्र पत्नी तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। कुछ दिन तो पत्नी मां के साथ रही रामानुजन के, लेकिन पटती नहीं थी। रामानुजन की मां पत्नी को बताती भी नहीं थी कि रामानुजन तुम्हें पत्र लिख रहा है, और रामानुजन को इसकी टीस बनी रही। रामानुजन बड़े सीधे थे, बड़े सरल स्वभाव के थे। सरलता में ही प्रभुता रहती है और किसी चीज में नहीं रहती। यहां तक सरल थे कि, और अंग्रेज थोड़ा फॉर्मल होते हैं, हम भारतवासियों की तरह नहीं होते कि खट से हम एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, मेल भाव रख लेते हैं। वो थोड़ा भले आदमी थे। हार्डी रामानुजन का बहुत आदर करते थे, लेकिन उनको इसका अंदाज ही नहीं था कि रामानुजन इस बात में एकदम अज्ञानी है कि कैसे तौर तरीके हैं, कैसे रहन सहन है। जहां रामानुजन को ठहराया गया उस कमरे में, वहां पर बिस्तर लगाने के बाद उसके ऊपर जो कंबल लगता था वो बिस्तर के साथ दबा के एकदम टाइट रख दिया जाता था दिन में,
जो महिला आती थी बनाने के लिए वो लगा चुकी थी। रामानुजन को पता ही नहीं था कि ये कंबल है इसके नीचे। वे उसके ऊपर तकिया के साथ सोते थे, एक पतली सी चादर लेकर। रात को उनको ठंड लगती थी और बेचारे फिर अपने साथ ओवरकोट एक ले आए थे, पूरी ओवरकोट पहन के सोने लगे। संजोग से एक भारतीय मित्र बन गया उनका, जो भारत में, उसने भी भारत में आजादी के बाद बड़ा नाम कमाया। प्लानिंग कमीशन की स्थापना उन्हीं की वजह से हुई, 5 ईयर प्लान उन्हीं की वजह से हुई। वे थे पीसी महालनोबिस। महालनोबिस लिखते हैं अपने ही शब्दों में कि कैम्ब्रिज में जब रामानुजन से मेरी थोड़ी मैत्री हुई तो रामानुजन ने उनको बताया संकोच से कि मुझे तो बड़ी ठंड लगती है, रात को सो नहीं पाता हूं। और देखिए वहां की ठंड बड़ी कड़कती होती, आज का दिन नहीं है कि सेंट्रल हीटिंग होती थी। तो महालनोबिस ने पूछा कि तो तुम ओढ़ते नहीं हो कंबल वगैरह? उनका कहाँ, कंबल तो कोई है नहीं। तो महालनोबिस उनके कमरे में गए, कंबल खोल के दिखाया, निकाल के कहा इसको ओढ़ के सोया करो। तब जाके उनको समझ में आया। दूसरी दिक्कत उनको थी कि देखिए वो वेजिटेरियन थे, ठंड वहां ज्यादा थी, हिंदुस्तानी खाना खाना पड़ता था तो खुद से बनाते थे। गणित में इतना लीन थे कि पता नहीं कितना समय दे पाते थे, हर वक्त की नहीं दे पाते थे। हाँ, कभी कभी वो करते थे, उनको खाना, भारतीय खाना अपने समय अपने तरह का बनाने का थोड़ा शौक भी आ गया। एक दिन उन्होंने महालनोबिस को खाने पे भी बुलाया, जो थोड़ा बहुत तैयार किए थे। अब उनको ठीक से तो आता नहीं था। महालनोबिस ने कुछ कह दिया होगा कि शायद नमक कम है या क्या, ऐसी कोई बात कह दी। रामानुजन इतने सेंसिटिव थे कि वो कमरा छोड़ के चले गए, वापस ही नहीं लौटे। महालनोबिस इंतजार करते रहे, अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया। खैर बाद में वे लौटे, उनको दुख हुआ कि उन्होंने मेरे भोजन के व्यंजन जो मैंने तैयार किया है उनको पसंद नहीं आया, उसका उनको कष्ट हो गया। तो बड़े सेंसिटिव थे। खैर ये चीजें एक तरफ रखा जाए एक क्षण के लिए, मैं कुछ और कहना चाहता हूं। यह रामानुजन, जिसको मद्रास यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप तो रोकी थी, अपने उससे वंचित कर दिया, उस रामानुजन के पास सिर्फ 10वीं की परीक्षा का प्रमाण पत्र था, इंटरमीडिएट भी नहीं पास किए थे। हार्डी ने क्या किया रामानुजन के साथ, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने क्या किया, यह मैं चाहता हूं कि जो युवा पीढ़ी अगर जुड़ी है मेरे इस वक्तव्य से, इसको वो गंभीरता से ग्रहण करे। राष्ट्र और समाज का निर्माण तब होता है जब उसकी जो संस्थाएं हैं वे मजबूत तरीके से अच्छे विचारों का आदान प्रदान करते हुए समाज को सक्षम रूप से आगे बढ़ाएं, परंपराएं अच्छी लगाएं, निर्भीक रूप से चलें। उसमें विश्वविद्यालयों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऐसे ही कैम्ब्रिज नहीं बन गई है, वहां अच्छे लोग, अच्छे विचार के काफी दिनों से बसे हुए हैं। रामानुजन के काल में भी था। यह रामानुजन जिसको मद्रास यूनिवर्सिटी ने 12वीं नहीं पास कर पाया तो इस तरह से जो है उसके साथ बर्ताव किया, उस रामानुजन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने यह भी नहीं पूछा कि तुम्हारा कौन सा सर्टिफिकेट है, क्या नहीं है, सीधे पीएचडी की उपाधि जो की त्यों प्रदान कर दी। ऑनररी डॉक्टरेट नहीं, बाकायदा जो विश्वविद्यालय की पीएचडी होती है रामानुजन को दे दी, और एक वेतन और पद भी दे दिया कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, जो उस समय भी विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में उसकी गणना थी। अब आप सोचिए, यह अंतर है। हम भारतवासियों ने क्या किया रामानुजन के साथ और कैम्ब्रिज ने क्या किया, 100 वर्ष पहले की बात है। पर एक बात और मैं कहना चाहता हूं, थोड़ा सा हट रहा हूं वक्तव्य से। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर था, गणितज्ञ होते हुए, रामानुजन को ईश्वर मानते हुए, अगर रामानुजन उस समय मेरे पास आए होते हार्डी की जगह और कहते कि मैं रामानुजन हूं, तो जो थोड़ी बहुत क्षमता ईश्वर ने दी है मैं उससे समझ तो जाता कि ये ईश्वर है। पर मेरे पास भी कोई अधिकार नहीं मिला नियमों में कि मैं रामानुजन को दाखिला दे सकूं बीए में, पीएचडी तो छोड़ दीजिए, कोई अधिकार नहीं। आपने इम्तिहान दिया है कि नहीं, आपके क्या रैंक आए, आपके क्या परसेंटेज आया, उसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं रहता। यह सोचने की बात है। और आपके विश्वविद्यालय में चांसलर साहब, मैं अनुरोध करता हूं कि जहां तक हो सके हम इस खुले लिबरल विचारों से जुड़े। ऋग्वेद आरंभ में ही कहता है, आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। कैम्ब्रिज ने जो 100 वर्ष पहले दर्शाया कैसे विश्वविद्यालय का संचालन होता है,
मैं आपसे आग्रह करता हूं विनम्र पूर्वक कि कुछ ऐसी संस्था के साथ हम लोग समझे और आपका विश्वविद्यालय क्या पता अगुवाई करे कि कुछ अच्छे विचारों के साथ, हम भद्र विचारों के साथ संस्था का उत्थान करें। नहीं तो भारत की हानि होगी अगर हमारी शिक्षा की संस्थाएं ऊंचे दर्जे पर ऊंचे विचारों के साथ नहीं जुड़ेंगी। खैर, रामानुजन जो गणित कर रहे थे और जो गणित लेकर आए थे उसके बारे में एक टिप्पणी और करना चाहता हूं। जब वे पानी के जहाज से चले कैम्ब्रिज के लिए, उस समय यह रामानुजन अकेले बिना किसी सहयोग के, बिना किसी सहायता के जिस गणित का उत्पादन कर चुका था, जिस गणित की खोज कर चुका था, वह गणित उसने अकेले यूरोप के सर्वश्रेष्ठ 200 वर्ष की गणित की परंपरा के ऊपर पराजय पा ली थी। इससे मैं अनुमान दिलाना चाहता हूं कि रामानुजन के गणित का क्या स्तर था। What was the level of his achievements? 200 years of European might in mathematics, its traditions, single-handedly Ramanujan had achieved that alone, unaided, without any books, by himself. Now you will understand how great he was. But as I told you, he was a very sensitive man. उनको मालूम नहीं था कि गणित की जगत में और क्या-क्या आविष्कार और लोग कर चुके हैं। तो कई बातें जो ऊंचे दर्जे की उन्होंने की थी, जिसपे उनको गर्व था, वो हो चुकी थी। वहां जब पहुंचे तो उनका मनोबल टूट गया और एक बार उन्होंने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया। लंदन में अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है, आज भी चलती है, उस समय भी चलती थी, उसके सामने वे कूद पड़े। लेकिन ईश्वर की कृपा थी, जाको राखे साइया, बच गए। हार्डी ने फिर उनको उबारा, पुलिस केस होता, सब कुछ होता, लेकिन हार्डी लड़ पड़े रामानुजन के लिए, कुछ भी नहीं हुआ और रामानुजन फिर जुट गए। और तब हार्डी के सहयोग से, लिटिलवुड के सहयोग से इतने ऊंचे दर्जे की गणित उन्होंने की कि हद है। आज के तारीख में, इस युग में जब मैं देखता हूं, तब भी मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी प्रभावशाली, इतनी महत्वपूर्ण गणित का उन्होंने निर्माण किया, आविष्कार किया, खोज की। एनॉर्मस हाइट्स। मैं एक ही झलक देता हूं, कठिन होता है ऐसे लेक्चर में वैसे भी समझाना। There is something in arithmetic which all of us at the level of schools know, called prime numbers. Prime numbers are those numbers amongst the counting numbers that cannot be divided by any other number except themselves and 1. So 2 is a prime number, 3 is a prime number, because you cannot divide 3 by any number except 3 and 1. 4 is not, because you can divide 4 by 2. 5 is a prime number. So on and so forth. Long ago, before the time of Jesus Christ, mathematicians knew that there are an infinite number of prime numbers. They also knew that prime numbers are very important. They knew that. And prime numbers are so important that today people use properties of prime numbers, mathematicians and computer scientists, and they use them in such a way that they can make millions of dollars. Each email, whatever I talk to you on Zoom itself, Gmail itself, they all use properties of prime numbers to ensure कि रास्ते में कोई उसको छीन के अपने तरह से इस्तेमाल न कर ले. That is how important they are, and those who make them, make use of such things for prime numbers, they have become very rich in mathematics. But Ramanujan was, of course, not looking at all that. He was just doing great things with prime numbers. One of the great discoveries of prime numbers that Europe had done in around the start of the last century, 20th century, was to discover how many prime numbers there are within any collection of first number n numbers. यानी पहले 1 मिलियन नंबर्स में कितने प्राइम नंबर्स हैं, बिना जाने कि कौन सा नंबर प्राइम है, फिर भी गणितज्ञों ने पता कर लिया था कि कितने प्राइम नंबर उस पे होंगे, संख्या कितनी है। 10 करोड़ नंबर ले लिए, 1 से लेकर 10 करोड़ तक, जबकि मुझे नहीं मालूम है कि इसमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। उसके बावजूद गणितज्ञों ने इतना प्रहार किया था उसके ऊपर, उस प्रॉब्लम को लेकर, कि उनको यह मालूम था कि 1 से लेकर 10 करोड़ के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। उसके लिए 200 वर्ष की परंपरा के साथ ये हुआ था। यह रामानुजन ने अकेले कर लिया था, इतने ऊंचे दर्जे की गणित उन्होंने की थी।
अब उनकी कहानी लगभग समाप्त हो रही है। उसके साथ हार्डी के साथ जुड़े, इससे ऊपर उठे कि मनोबल न टूटे, बड़े ऊंचे दर्जे की गणित उन्होंने की, बड़ा ऊंचा काम किया, लेकिन वो टीस तो थी, पत्नी से कोई पत्र नहीं आता था, भोजन ठीक से हो नहीं रहा था, बीमार पड़ गए और बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़े। तो हार्डी समझ गए कि शायद ये बचेंगे नहीं, तो उनको भेज दिया गया भारत वापस। भारत जब वो लौटे तो उनका नाम हो चुका था, विश्व में उनकी ख्याति फैल चुकी थी, विश्व विख्यात थे रामानुजन। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, मैंने रामानुजन के पत्नी के शब्दों में यह पढ़ा है, जब रामानुजन के 100 वर्ष पूरे हो गए थे, वो तो गुजर चुके थे, उनके पत्नी ने तमिल भाषा में एक लेख लिखा था रामानुजन पे, उसमें उन्होंने लिखा, ये मैंने खुद पढ़ा है, कि रामानुजन बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी थे और उन्होंने अपने कुंडली का अध्ययन कर लिया था, और जब वे लौटे तो चूंकि उनकी माँ और उनकी पत्नी चिंतित थी उनके स्वास्थ्य को लेकर, तो उन्होंने बता दिया था कि 1 वर्ष से थोड़ा और अधिक मेरी अवधि रहेगी जीवन की, उसके बाद मेरा देह अवसान हो जाएगा, ये बता चुके थे वो। लेकिन अब आप देखिए, यह रामानुजन लौटा है, वो खुद जान रहा है गंभीर रूप से बीमार है, अपने निधन की तिथि तक से बता दी थी उन्होंने, 1 वर्ष से अधिक आगे थी काफी, लेकिन गणित नहीं त्यागा। और दूसरा काम, पत्नी के साथ उनका प्रेम भाव ने एक बहुत ही कोमल स्वरूप धारण कर लिया। बिस्तर में पड़े रहते थे, लेकिन पत्नी बैठती थी सामने, जब स्नान करके आती थी, बाल में तेल लगाती थी, अपने बाल में कंघी करती थी, रामानुजन को ये बहुत भाता था। ये उनके पत्नी ने लिखा है। उसको बड़े कोमल समय था, बड़ा सेंसिटिव वक्त था, कुछ तो समय उनको मिला, जो भी मिला समय, लेकिन उसी समय चूंकि उनकी ख्याति इतनी हो गई थी, अंग्रेजों का राज्य था, उन्होंने रामानुजन को एक बड़ा भारी वेतन तय कर दिया। अब देखिए रामानुजन क्या करते हैं। यह फिर से मैं चाहता हूं कि अगर कोई युवक जुड़े हैं, इसको समझे कि समाज का, राष्ट्र का ऋण क्या होता है। यह रामानुजन जिसने भारत की ख्याति को फैला दिया, और सबसे बड़ा उनका प्रभाव यह पड़ा कि भारत में युवा पीढ़ी सोचने लगी कि हम गोरों के बराबर ही नहीं, उनसे ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि रामानुजन ने करके दिखा दिया। नहीं तो उसके पहले हम मानते थे कि भाई वो जो है ज्ञान विज्ञान में उसके टक्कर के हम नहीं हो सकते। ये रामानुजन ने तो एकदम दीवारें तोड़ के बता दिया। और उस समय एक युवक था चेन्नई में ही, जिसने बाद में नोबेल प्राइज ली, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वह अपनी आत्मकथा में लिखता है कि रामानुजन का क्या जादू था। वो कहता है कि उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था, गुलामी का दौर था, कहा कि हम लोगों का मनोबल टूटा था, परंतु कुछ नाम थे, 4 नाम बताते हैं सुब्रमण्यम, तो उनसे हमारा मनोबल बना रहता था, हम प्रेरित होते थे, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर, जवाहरलाल नेहरू और श्रीनिवास रामानुजन। कहा कि इससे हम जो पढ़ते थे कॉलेज के छात्र मनोबल बनाए रखते थे। यह रामानुजन की भूमिका थी। वह रामानुजन को भारत में अंग्रेजों ने वेतन दिया बड़ा ऊंचा। रामानुजन अब जानते हैं कि नहीं रहूंगा 1 वर्ष में। यह भी जानते हैं कि उनके माता पिता, पत्नी, भाई सब रामानुजन के ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर है। फिर भी भारत माँ के इस महान सुपूत ने सरकार को लिखा कि यह वेतन मैं नहीं लूंगा, गरीब प्रतिभाशाली छात्रों में बांट दिया जाए। उससे हमें ऋणी बना गए। रामानुजन ने हम सबको ऋणी बना दिया, और यह ऋण चुकाए नहीं चुकेगा, लेकिन हमें चुकाते रहना होगा, जिससे कि आने वाली पीढ़ी हमारी भी ऋणी किसी प्रकार से हो जाए। रामानुजन का ऋण तो नहीं चुका पाए, लेकिन चुकाते रहेंगे, इसी से समाज सजग रहता है, उसका भला होता है। मैं चाहता हूं कि यह भी आप समझें कि इतनी बड़ी भूमिका रामानुजन की गणित के बाहर भी थी। मनोबल युवा पीढ़ी का बनाया, इस तरह से उन्होंने अपना दान कर दिया, सब कुछ किया, लेकिन अंत में जैसा सबको मालूम ही हो गया था, उनका निधन हो गया। आखिरी क्षण तक, जब तक उनके होश नहीं चले गए, बेहोशी में जब तक वो नहीं पड़े, वे गणित करते रहे, नहीं त्यागा उन्होंने, नहीं त्यागा गणित को, लीन रहे उसमें। इसीलिए वो अमर हैं। उनके
रोम रोम में गणित का ईश्वर बस गया था। उसी को कहते हैं अमरता, जब आपके रोम रोम में ईश्वर बस जाए। इसीलिए मीराबाई को विष नहीं लगा, उनके रोम रोम में तो जगह नहीं थी। श्री कृष्ण बसे हुए थे तो विष कहाँ जाता, इसीलिए वो अमर हो गई। रामानुजन भी अमर हो गए, और उसी से भारत में हम लोग आज उनका ऋण चुकाने के लिए उनके ऋणी हैं। ईश्वर करे कि वह दिन आए कि फिर से हम लोग और रामानुजन को उत्पन्न करें। आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं, उनके निधन के बाद उनके धर्म पत्नी ने बड़े कठिनाई में दिन काटे। समाज ने, राष्ट्र ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, यहां तक कि अंत में उनका नाम पड़ गया था टेलर जानकी। वो कपड़ा सी के अपना गुजारा करती थी। एक गांधी के गणितज्ञ चेले थे सुरेश राम भाई, अंत में वे जब रामानुजन की जीवनी लिख रहे थे हिंदी में, तो वे पहुंचे रामानुजन के पत्नी के पास, तब उनको पता चला। तो उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी, उस समय प्रधानमंत्री थी, उनका ध्यान आकर्षित किया, तो फिर भारत सरकार ने उनको भी वेतन दिया। लेकिन हमें इस पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दूसरा रामानुजन 10 बार सोचेगा कि भाई ये सब तो मैं कर लूंगा, मेरे परिवार का क्या होगा, कोई देखने वाला है कि नहीं है, यह भी ध्यान रखें। बस इतना ही कहना चाहता था। इस अवसर के लिए मैं धन्यवाद फिर से व्यक्त करता हूं। आशा करता हूं कि ये कड़ी आगे चलती रहेगी, आपकी परंपरा बनी रहेगी, और मैं भी एक दिन आपके विश्वविद्यालय जरूर अवश्य उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. Thank you for this great knowledge. Questions are invited from the participant. Kindly post your questions in the chat box. If anyone wants to ask the questions, they can write in chat box. We have some queries from the students, sir. One of the student wants to know, have all the Ramanujan formula have been proved? Well, I don't know what he means by this question, but रामानुजन ने जो रिसर्च के रास्ते खोले हैं, उसमें अभी आगे बहुत काम बाकी है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो रामानुजन ने सोची थी, उसको लेकर अभी काम बहुत बाकी है। That is for sure. That is for sure. We have one more question, sir. Why did Ramanujan get fame only after going abroad? Was there no one to know his talent in India? Oh, I explained that in my lecture. Mr. Ashish Dixit wants to ask, sir, please tell us about the story of taxi cab number 1729 between Professor Hari and Ramanujan. Well, it looks like you already know the story. I don't want to repeat the story because it's a very common story. Ramanujan was very good with numbers. He was extremely gifted. तो ईश्वर की देन थी। 1729 जो नंबर था, वो अस्पताल में थे, हार्डी उनसे मिलने आए, तो हार्डी ने सोचा कि थोड़ा मायूस लग रहे हैं, इनका मन बहलाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं जिस टैक्सी में आया उसका नंबर था 1729, यह अशुभ तो नहीं है। तो रामानुजन ने तुरंत उसी क्षण उत्तर दिया, नहीं नहीं, ये बड़ा अच्छा नंबर है। This is the only number that can be written as the sum of two cubes. क्यूब होता है, जैसे अगर 2 है, 2 क्यूब हुआ 8, 3 है तो 3 क्यूब हुआ 27। उस तरह से हर नंबर का एक क्यूब होता है। तो 1729 is the only smallest number which can be written as the sum of two cubes in two different ways. दो अलग अलग नंबरों का क्यूब कीजिए तो 1729 बनेगा। ऐसे नंबरों में 1729 सबसे छोटा है। ये सारी चीज उन्होंने उसी क्षण बता दी। तो रामानुजन को लेकर हार्डी कहते थे कि उनके परम मित्र थे सारे नंबर। They were all his best friends. I think all the queries are answered. Professor Singh, can I ask something? Sure. Sir, I do not know. I have a feeling that nowadays people have lost interest in taking up mathematics as a profession, unless there is a compulsion. The kind of Ramanujans we see, we see very few nowadays. The natural talent,
demonstrating very strong acumen for mathematics. So, would you like to comment on that, sir? You know, my thing would be I agree and I disagree with you. And let me explain what I mean by that. It's not like that. There are still lots of people, and there have been some very outstanding mathematicians that India has produced. The problem is that the situation in India is not very conducive. As I told you, had Ramanujan come to me when I was Vice Chancellor, I still would not have been able to help him. The rules are so strong. So then what would he have done? The same thing that he did 100 years ago, he would have gone abroad. Because there they are very liberal. They look at things in a very enlightened way. They have an ability to recognize talent and then to how to nurture it. That is something which in many places in India, we still don't know. We have burdened ourselves. Our institutions of learning have been heavily burdened with rules, regulations, and mediocrity. मीडियोक्रिटी भारत के लिए अभिशाप बन जाएगी हमारी शिक्षा की संस्थाओं में. इसको लेकर हमें सजग रहना बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है हमारे लिए, वरना हम खतरे में हैं. Actually, the reason I asked this question, I know a person, in fact, my contemporary, pretty old story, who ranked 7th in All India IIT Joint Entrance and took admission for a mathematics course in mathematics. He could have opted for any of the IITs those days in any discipline he wanted, but then he had this in his mind, and I know that person. Unfortunately, to these days, you find very few people, having that kind of a passion. Number two, people. This is, I may be wrong, and I hope I am wrong. Most of the people take mathematics. I may feel I'm strong in mathematics and I pursue mathematics. I have interest in mathematics, but the agenda there in my mind is I use mathematics for applied purposes. Wherever there is mathematics, I'll excel in those subjects. In that sense, in the core mathematical area, I'll perhaps not try to venture into. But as I said, there are lots of people who are very talented, but then most of them tend to go away after a certain stage. BA कर लेते हैं मैथमेटिक्स में, फिर बाहर चले जाते हैं. मैंने एक प्रयोग किया था करीब आज से 15 और 20 साल के बीच में, 5 वर्ष का प्रयोग. उस प्रयोग में मैंने भारत में से खोज के निकाले ऐसे छात्र जो पढ़ने में प्रतिभाशाली थे गणित के संदर्भ में, परंतु उनको अवसर नहीं मिलेगा यहाँ की संस्थाओं में क्योंकि अंक ठीक से नहीं ला रहे थे. तो मेरे साथ कई लोग जुड़ गए. मैंने लोगों से आग्रह करके समझा के, तो कई युवक भी, अच्छे गणितज्ञ भी जुड़ गए, कुछ और भी लोग जुड़ गए. तो इनको हम बिना कोई डिग्री दिए, सर्टिफिकेट दिए, गणित में और अच्छा बनाते थे, निखारते थे उनके गुणों को, प्रतिभा को. लेकिन ये था कि यहाँ, मैं तब वाइस चांसलर भी नहीं था, होता भी तो शायद ना कुछ कर पाता, तो यहाँ कोई संस्था इनको लेने को न तैयार होती थी. क्योंकि मैं एक पद रखता हूँ विदेश में, अमेरिका में मैं पिछले 25 साल से एडजंक्ट प्रोफेसर हूँ. मुझे बड़ी छूट है आने जाने की, जब जाना चाहूं जाऊं, जब आना चाहूं आऊं. देखिए, इसीलिए संस्थाएं उनकी चमकती हैं. तो वहां मैंने उसका लाभ उठाया और मैं यहाँ से सिर्फ कागज पे लिखता था कि यह योग्य है, और वो उसको पूरा स्कॉलरशिप देकर रख लेते थे, पूरी स्कॉलरशिप. 5 वर्ष में मैंने करीब 60 बच्चों को पीएचडी करवा दी, और वो लगभग सारे के सारे विदेश, कुछ आए हैं बाहर वापस, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, सब विदेश रहे. मुझे उससे ऐतराज नहीं, वो है भारत के ही, और वो सब वहां बड़े सफल हैं, अच्छा काम कर रहे हैं. ऐसा नहीं है तो हैं, काफी हैं. बड़ी मेहनत लगती है, परिश्रम बहुत करना पड़ा मुझे, लेकिन मुझे मेरी अपनी रिसर्च में हानि हुई, क्योंकि समय लगता है, इसमें मेहनत लगती है, खोजना पड़ता है, और सबसे ज्यादा समाज से आसानी से नहीं मिलती सहायता, लेकिन मिली मुझे बात. Thank you, sir. Thank you, sir. Mr. Sumit Yadav wants to ask, as far as I have heard about Ramanujan, he had got intuitions for the mathematical things.
and he rarely used thought process, as thought process take time to solve any problem. Please comment on it. See, Yadav ji, ऐसा है कि all of us, even you, I, everyone uses intuition in everything, not just mathematics. आप कहते हैं ना मेरा अपना सोचना है, मुझे ऐसा लग रहा है. That's your intuition. यह है कि किस स्तर तक आपका इंट्यूशन ऊपर विकास कर चुका है. मेरे अनुभव में मैंने बहुत गणितज्ञों के, मैंने जिनके साथ पीएचडी किया वे अपने जमाने के विश्व के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञों में से थे. मैं देखता था कि उनका भी इंट्यूशन बड़ा स्ट्रांग है, बहुत ही प्रबल था. ऐसे तमाम मैंने गणितज्ञों के साथ देखा है, मेरा अनुभव रहा है. और धीरे धीरे उसमें जब लीन हो जाते हैं तो हमारा सबका इंट्यूशन बढ़ता है. हाँ, रामानुजन इस स्तर पे थे, इस तरह से उसमें लीन हो चुके थे कि उनका इंट्यूशन का विकास बहुत ज्यादा अधिक हो गया था. देखिए, रामानुजन को हम अपने मापदंड से नहीं समझ सकते हैं. आप ये मान के चलिए, आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन कभी समझा नहीं सके किसी को कि ये मैंने कैसे आविष्कार किया जनरल रिलेटिविटी का. स्पेशल तो फिर भी समझ जाते थे लोग कि हाँ ये रहा होगा, ये रहा होगा. जनरल रिलेटिविटी को आइंस्टाइन भी कभी ठीक से नहीं बता सके कि कैसे उनको ये आइडिया आई, नहीं समझा सके. ये कुछ ईश्वर की देन होती है, उसकी कृपा हो जाती है शायद. और वो कृपा तभी होगी जब आप उसमें एकदम लीन रहेंगे. समझ लीजिए साधना है, तपस्या है, तो मजबूर होकर वो फिर आ जाता है. यही होता है. Miss Palak Chan is asking, can we work ahead on Ramanujan's theorem? थ्योरम नाम की तो कोई ऐसी चीज नहीं. रामानुजन के काम को लेकर आप बहुत काम कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा. पूरी छूट है, कीजिए, अच्छा रहेगा, आपका भला होगा, देश का भला होगा, राष्ट्र का भला, संसार का भला होगा. जरूर कीजिए, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. ये मेरे लेक्चर से काम नहीं चलेगा. आप अपने से पूछिए कि आप कितनी कीमत चुकाने को तैयार है. बिना कीमत चुकाए कुछ नहीं मिलता जीवन में, कुछ भी नहीं. हम तेंदुलकर को देखते हैं कि बैटिंग में आते थे तो क्या चौका मारते थे. इस कोई सोचता नहीं है कि कितनी तपस्या की थी उन्होंने. दिन प्रतिदिन 10-10 घंटा बैटिंग प्रैक्टिस करते थे. उस तरह की कीमत आप चुकाइए, आप भी रामानुजन बन जाएंगे. So Mr. Jayesh Chauhan asks, sir, at the undergraduate level, there is a dilemma of choosing a particular field in pure mathematics for research purpose, as everything seems to be interesting. What would you advise for acquiring a clear view? देखिए, कुछ तो गणितज्ञों से मिलिए, कुछ अपनी भी रुचि आपको पता चलेगी धीरे धीरे. जब आप उसमें और अंदर प्रवेश करेंगे, लीन होंगे, तो आपको भी रास्ते मिलेंगे और फिर आप खुद से तय करेंगे. कुछ करने की कोशिश कीजिए जिस चीज से आपको आकर्षण हो रहा है, और उसमें अगर आप सफल होते हैं तो मान जाइए सही है. कठिनाई बहुत हो रही तो दो एक और स्वाद ले लीजिए किसी और चीज का, किसी और क्षेत्र का. तो इससे अंदाज लगता है, कुछ अंदर से भी आवाज उठती है. लेकिन वही, बिना प्रयास किए कुछ नहीं होगा. तेंदुलकर पहले पिंग पोंग खेला करते थे. वो तो अचानक जब देखा उन्होंने, बड़ी कम अवस्था में क्रिकेट है, क्रिकेट से जुड़े, तब अचानक उनको लगा नहीं पिंग पोंग नहीं, क्रिकेट अच्छी चीज है. आप समझ रहे हैं ना. तो इसका कोई सरल मेरे पास उत्तर नहीं है. मेहनत, प्रयास, लीन, निष्ठा, उससे फिर धीरे धीरे होता है. अच्छे गुरुओं का संग, तेंदुलकर के गुरु की बड़ी भारी भूमिका रही उनके जीवन में. आप भी ढूंढिए कोई अच्छा गुरु मिल जाए. और जरूरी नहीं कि गुरु सामने हो प्रत्यक्ष. आप जो है साक्षात गुरु ना मिले, इंटरनेट के माध्यम से बहुत कुछ हासिल हो सकता है, किताबों के माध्यम से होता है. रामानुजन को तो पुस्तक ने आगे बढ़ाया था, वो भी ऐसी पुस्तक जिसको हम ट्यूशन सेंटर की किताब कहते हैं. One student wants help from you in fluid dynamics, sir. This is not from topic, but Mr. Jeevan Kumar asked. आप फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के विशेषज्ञों से संपर्क कीजिए. वहां अच्छे दर्जे की फ्लूइड डायनामिक्स होती है. और भी जगह है, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां मैं जानता हूं कि अच्छी होती है. All the queries are answered now, sir. Thank you for sharing your great knowledge with us. It was a great pleasure for all of us to listen to you. Thank you once again, sir. Thank you. Now, I request coordinator of today's program,
Dr. Satish Shukla to propose words of thanks. Thank you, Nikita. Good afternoon to all. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion a resounding success. First and foremost, I thank our special guest, Padma Shri Dr. Dinesh Singh ji, the famous Indian mathematician, Vice Chairman, Jammu and Kashmir Higher Education Council, who despite his busy schedule has found time to grace this occasion. Sir, we request you to visit our university in near future. I thank our sources of inspiration, Honorable Chancellor Shri Purushottam Das Pasari ji, Honorable Vice Chancellor Dr. Upendra for their support, vision and commitment for 5th Ramanujan Memorial Oration. I extend my thanks to Dr. Ken Guru Prasad sir, Director, Sri Vaishnav Institute of Science, for his support and guidance for the oration. My heartfelt thanks to the head of institutes, head of departments, the faculties, the staff, and the students of Sri Vaishnav Vidyapith Vishwavidyalaya for their support. I thank all the distinguished invitees present here for accepting our invitation. Last but not the least, I thank to all who have worked hard to ensure that this occasion becomes a memorable success. Once again, I thank you all for your attention. Thank you, sir. Thank you, sir. I request you all to rise for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय. Namaskar. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you.